So, rotational dynamics part 10 NCRT. We are solving the questions MCQs there. So, in NCRT question number 88 से आगे चलेंगे अभी हम. ठीक है. This is चलिए क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में. आज मैथ्स तो नहीं करेंगे, आज बस यही करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन से a ball rolls without slipping. ठीक है. So it's a rolling motion. The radius of gyration of the ball about the axis passing through its center is k. If the radius of the ball be r and the fraction, then the fraction of total energy associated with its rotation will be total energy associated with its rotation. Excuse me, sir. So you aren't sharing your screen. So यहाँ पे this is question number 88. A ball rolls without slipping, so it's a rolling motion basically. This is a rolling motion. ये rolling motion है. ठीक है. So they want the fraction of the total energy associated with rotation. मतलब क्या पूछा है भाई? मतलब उन्होंने पूछा है कि भाई टोटल एनर्जी जो भी कुछ है उसका कितना फ्रैक्शन इज द रोटेशनल एनर्जी. सो के ई रोटेशनल अपॉन के ई टोटल का फ्रैक्शन पूछा गया है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. के ई रोटेशन इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर and ke total is nothing but ke translational plus ke rotational. So that will be nothing but half I omega square divided by half mv square plus half I omega square. Half common, half cancel. Okay, half common, half cancel. I omega square को हम लिखेंगे I is equal to mk square एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से या आर ओमेगा के हिसाब से ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. I इज एम के स्क्वायर एंड ओमेगा इज v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. होल थिंग डिवाइडेड बाय m v स्क्वायर प्लस m के स्क्वायर इंटू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. चलिए बताइए आगे क्या हो जाएगा. सो दिस फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी टेक mv स्क्वायर कॉमन एंड कैंसिल. मन ही मन में उसको कॉमन और कैंसिल कर देंगे. सो दिस विल बिकम k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर divided by 1 plus k square upon r square. So that will be k square upon k square plus r square, and that is option C. Is this clear to you all? I hope it is clear to you. बहुत simple question था ये. Question number 89. मेरे ख्याल से 89 को हमने सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं. ये रहा. यहाँ पर दिस इज 1/3, दिस इज 2/, शायद 5 है, 2/3 एंड दिस इज 2/7. चलिए क्या दिया है यहाँ पे. A solid cylinder of mass m radius r rolls without slipping down the inclined plane making angle theta with the horizontal. The acceleration is क्या. ये कल हमने जो डिराइव किया था उसी के ऊपर बेस्ड है. कल हमने कुछ डिराइव किया था ना. द एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. ये उसको उठा लेते सीधा सीधा. दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर एनी बॉडी. एक्सेलरेशन फॉर एनी बॉडी. अब अगर ये सॉलिड सिलेंडर दिया है, वी आर गिवन दैट इट्स अ सॉलिड सिलेंडर. तो सॉलिड सिलेंडर के लिए what will be the moment of inertia for solid cylinder. For solid cylinder I is equal to
solid cylinder is disk, na? Then we have mr square upon 2, isn't it? Let me equate this with mk square. So for solid cylinder, k square is equal to r square upon 2. Substitute कर दीजिएगा यहाँ पे. So this will become the acceleration of the solid cylinder is equal to g sin theta upon, हमने कैलकुलेट किया था शायद, 1 plus k square upon r square is half. So this will become 3 by 2. ऊपर जाके 2 by 3. So this will become 2 by 3 times g sin theta. And the same problem they can ask for any other body also. So B is the answer there. 2 by 3 times g sin theta. Quite easy. I hope this is clear. Question number 90. ये इजी वाले क्वेश्चन थे. मुझे लगता है इसको मुझे सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था यार. बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है. कुछ अच्छे टाइप के मुझे करने चाहिए. अच्छा ये देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 89. वाह, ये बढ़िया है, ये अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 90 है क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में. क्या बोल रहा है ये? चलिए उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो यार. क्या है ये? 2 by 3, this is 1 by 3, this is 2 by 5, etc. चलिए क्या दिया है यहाँ पे? In question number 89, the force of friction acting on the cylinder is force of friction which is acting on the cylinder. बढ़िया क्वेश्चन है ये. स्टार क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम. फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनानी पड़ेगी यहाँ पे तो अपने को. तो चलिए बना लेते हैं, कोई नहीं. पहले एक सिलेंडर, एक ये लीजिए, ठीक है. ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर देयर इज अ सिलेंडर. चलिए ये रहा सिलेंडर. थोड़ा छोटा बना रहे तो इसको बहुत ही बड़ा हो जाएगा जी. ये रहा सिलेंडर. दिस इज रोलिंग डाउन. ठीक है. अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस ऐड करेंगे बताइए भैया. पहले तो होगा वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ओके. सो दिस इज W इज इक्वल टू mg वेट. ये एंगल है थीटा. थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. अब ये जो mg है इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे एंड पैरेलल टू द प्लेन वैसे. ठीक है. अगर ये थीटा है so this will become mg cos theta adjacent component and theta के सामने वाला component this is going to be mg sin theta. I hope this is clear. Yes, no? समझ में आ रहा है? अब देखिए ये रोल हो रहा है ना. दिस इज रोलिंग ऐसे, मतलब इधर जा रहा है. बराबर है क्या? तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर एक्ट करेगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कहाँ पर एक्ट करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जरा मुझे बताइए. I am interested in writing down or showing here the direction of force of friction. बताइए कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे. बराबर है क्या? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर ऐसे जा रहा है, मतलब अगर मुझे उसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत पड़े तो ये जो बॉडी है वो इस तरफ जा रही है ना. ऐसे घूम घाम के ऐसे जा रहा है.
देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं कि साइकिल का जो पहिया होता है, साइकिल अगर ऐसे जा रहा है, दिस इज द साइकिल का एक पहिया, तो साइकिल का पहिया अगर ऐसे घूम रहा है एंड दिस इज द ग्राउंड, ऐसा ऐसा जा रहा है इधर, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड इट विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर साइकिल का पहिया ऐसा घूम रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ऐसा अपोज करेगा, उसके मोशन को। समझ में आ गई बात? तो उसी प्रकार इन द सेम वे यहाँ का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस दिशा में एक्ट करेगा, याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ गई बात? दिस इज द फोर्स, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, so the force of friction is going to act in this direction like this. Is this okay? The force of friction mg sin theta, समझे? ma, एक सेकेंड, कहाँ से mg sin theta मैंने कॉल की, मैं डायग्राम, so the force of friction here it will be acting is in the opposite direction, ऐसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे, this is the direction of force of friction f, ये रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस में मोशन इस डायरेक्शन में है, so what is the resultant force mg sin theta minus f, mg sin theta minus f, this is the effective force, f is equal to ma, so it's going with acceleration a। यहाँ पर मैंने D'Alembert's प्रिंसिपल अप्लाई किया या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये यहाँ पर मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। F is the force of friction, so what will be the force of friction here? The force of friction is given by, अभी ये एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, ये पता करना पड़ेगा मुझे, m into a टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में सॉल्व किया है, एक्सेलरेशन दैट आई हैव फाउंड आउट इज 2/3 into g sin theta, अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ 2/3 into g sin theta, वही यूज किया यहाँ पे। So what will be the force of friction? This is the force of friction, F is equal to mg sin theta minus 2/3 of mg sin theta, तो उसमें से मैं mg sin theta कॉमन ले लेगा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 minus 2/3 which happens to be 1/3, so 1/3 mg sin theta, and that is option B, ये रहा B, B is the answer there. Is this okay? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये इसलिए मैंने एफ ऊपर एज्यूम किया है। इज दिस क्लियर टू यू? दिस विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 विच इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन वाला ही है क्वेश्चन दोबारा, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पे? A solid cylinder rolls up the inclined plane of inclination theta with an initial velocity v. How far does the cylinder go up the plane? अब ऐसा ही एक सिलेंडर है and it is going over the inclined plane, ये रहा inclined plane, और ये सिलेंडर शुरू हो गया है यहाँ से शुरू हो जाता है वो, ठीक है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो चला जाता है सब हाइट v तक, यहाँ तक चला जाता है वैसे,
तो वी से यहाँ से वो शुरू हो जाता है and it goes till here. This is inclined angle theta. Angle of inclination is theta. यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी v है जबकि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 बन जाता है. सो हाउ फार पूछा है ना उन्होंने. हाउ फार बोले तो हाउ फार मतलब ये डिस्टेंस पूछा है अपने को उन्होंने. दे आर आस्किंग व्हाट इज दिस डिस्टेंस. s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. समझ में आ गई बात. तो भाई हम ऐसा मान के चलते हैं कि दिस हाइट s is corresponding to ये रहा हाइट s and this is the displacement s and height is h. चलिए अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि भाई इट्स दिस इज पोजीशन 1 and this is position 2. So I'll go for conservation of energy principle. So total energy at 1 is equal to total energy at 2. तो 1 के यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और 2 के यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 बन जाता है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ. वो रोल होता हुआ जा रहा है. इट रोल्स. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा वहाँ पे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा जी. रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. ये 2 ट्रांसफर कर लिया मैंने यहाँ पे तो 2 टाइम्स mgh हो जाएगा ये. और mv स्क्वायर लेट इट बी. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये. दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल एट 3. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. करेक्ट है. तो ये कितना बन जाएगा जी. दिस विल बी लाइक m भी कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट. सो दिस विल बिकम वी स्क्वायर. एक वी स्क्वायर प्लस आधा वी स्क्वायर इज 3/2 वी स्क्वायर is equal to 2gh and that will give me well h is equal to 3v square upon 4g. That's the answer. 3v square upon 4g. तो ये तो h हो गया लेकिन यहाँ पर मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s. सो s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा. तो h मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है 3v square upon 4g. So this will become 3v square upon 4g sin theta and that is option कौन सा है ये 91 का. D is the answer there. I hope this is clear to you. Easy था ये भी. अच्छा था क्वेश्चन. Is that clear? Hello 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 hello. और स्टार वाले क्वेश्चन ही हम ज़्यादा करेंगे आज सॉल्व. चलिए 93 कर लेते हैं अभी. 93 सारे स्टार वाले क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम लोग. This is star again. All these are very good questions. 93 आ गया. और ये उसके ऑप्शन हैं. क्या दिया है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 93 एक स्टार क्वेश्चन है. They say a ring of radius r is rotating with angular speed omega 0 about the horizontal axis. ठीक है.
It is placed on the rough horizontal surface. The coefficient of kinetic friction is mu k. Kinetic friction, kinetic friction, kinetic friction मतलब kinetic friction. Whenever there is relative motion, that is called as the kinetic friction. अरे यार, it's a kinetic friction. Okay, fine. The time after which it starts rolling is the time after which it starts rolling. अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लूं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है. दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन और चलिए अब क्या हो रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक रिंग जो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है. देयर इज अ रिंग विच इज ऑलरेडी रोटेटिंग. ये एक रिंग है, वो पहले ऐसे घूम रहा है. दिस इज द रिंग. वो खुद घूम रहा है पहले. इनिशियली इट इज रोटेटिंग. यू सी ऐसा घूम रहा है वो, समझो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी कुछ है, ठीक है. और ऐसा घूमता हुआ रिंग जैसे ही यहाँ पर टच किया तो पहले तो वो उसके ऊपर घिसना शुरू करेगा, फिर बाद में ऊपर चढ़ना शुरू करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? पहले तो वो उसके ऊपर घिसना शुरू करेगी. जैसे ही वो टच करेगा वहां पर, जैसे आप ये समझ सकते हो कि जो फ्लाइट होता है, एरोप्लेन होता है, जब वो लैंड करता है तो उसके जो पहिए होते हैं वो तो पहले घूमते रहते हैं, वो एकदम सडनली टच करते हैं तो देयर विल बी द फ्रिक्शन. सो जब ये घूमते हुए उसको टच करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे ही वो इसको टच करेगा यहाँ पे, जैसे ही द इंस्टेंट इट विल टच हियर, द इंस्टेंट इट विल टच हियर, इधर जैसे ही उसने टच किया तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ट्राई टू पुश इट इन दिस डायरेक्शन. isn't it? This is the direction of force of friction यहाँ पर. Is it okay? This is the direction of force of friction. Okay? And that direction of force of friction, ये जो है it is given by F. ठीक है. और वो घिसता रहेगा वहां पर, घिसता रहेगा मतलब there is actually rubbing action. So this is nothing but the kinetic force of friction, which is equal to mu k times the normal reaction. Mu k times the normal reaction. Okay? अच्छा, it is placed on the rough horizontal table. ये horizontal table है. तो ये जो डायग्राम है उसको मुझे यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है. I'll just remove this and it is you know resting on the horizontal table. अगर horizontal table पर है तो this has to be horizontal like this. और ये जो force of friction है इसको भी मैं horizontal बना देता हूँ. This is a horizontal table and this force of friction. इसको मैं horizontal बना देता हूँ. ओके. और ये पूरा का पूरा जैसे ही इधर टच करेगा तो इट विल कम डाउन लाइक दिस. इधर टच करेगा. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके. तो जैसे ही वो घिसना शुरू करेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से फिर वो बाद में रोल होना चालू हो जाएगा. सो आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट रोलिंग, ये हमको पूछा गया है. ठीक है. नाउ द एक्सेलरेशन, सो यही फोर्स है उसके ऊपर जो एक्ट होने वाला है. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन इट्स सेंटर ऑफ मास. ये सेंटर ऑफ मास फिर इस तरफ ऐसे मूव होना चालू करेगा. So it will start moving in this direction in center of mass due to friction. Due to friction, it is given by A is equal to
force upon the mass of this ring. Okay, force upon the mass of the ring. I'll say m is the mass of the ring. ठीक है. Now what is this force of friction? देखिए अब ये force of friction, अगर मुझे इसका free body diagram draw करना पड़ेगी तो what are the various forces acting on this? पहला तो है its weight. Weight is acting downwards, mg. और इसी वेट को वो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है. इसी वेट को वो नॉर्मल रिएक्शन भी बैलेंस कर रहा है. So this is the normal reaction N. So N is equal to mg actually, and therefore this will give me force of friction is equal to mu k times mg. तो वही मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, mu k times mg upon m. So basically this is mu k into g. Mu k into g. This is the acceleration. अब इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा वहां पे. So what will be the torque due to friction? Torque due to friction is given by tau is equal to force into the radius, because it is force into the perpendicular distance. Perpendicular distance is r, and this force is nothing but mu k into g into r. So it will be mu k g into r. Is this okay? Is that clear? Torque is force into, एक मिनट, mu k mg, ये तो एक्सेलरेशन होगा, mu k mg into r. This will be mu k mg into r. Mu k mg into r, and this torque is also equal to I alpha. तो I is for the ring. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, एंड देन उसका एंगुलर एक्सेलरेशन. सो द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, isn't it? Now let me just simplify this. इसमें से m gets cancelled and r gets cancelled. M and r gets cancelled. So what will be the angular acceleration? The angular acceleration is given by mu k g upon r. This is the angular acceleration, mu k g upon r, isn't it? Now यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? व्हाट वेलोसिटी अगर लीनियर मोशन की बात करो, बिकॉज दिस विल स्टार्ट विद द लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो इनिशियली तो वो उधर ही घूम रहा है, मतलब वहां पे देयर इज नो लीनियर मोशन. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी उसका मैं बोलूंगा v होगा, इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन फॉर लीनियर मोशन. हमने एक्सेलरेशन फॉर लीनियर मोशन यहाँ पे कैलकुलेट mu k into g. So let me substitute here. This will become mu k g into t. So what is this velocity? This is the velocity. Velocity is equal to mu k g into t. तो ये तो हो गया एनालिसिस ऑफ लीनियर मोशन. अब मैं इसके रोटेशनल मोशन का एनालिसिस कर रहा हूँ. रोटेशनल मोशन की अगर बात हो रही है तो रोटेशनल मोशन में उसका खुद का कुछ स्पीड है पहले से. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 0, और जब ये वहां पर जाके इसका स्पीड 0 होगा, isn't it, तब जाके वो शुरू हो जाएगा मूव करना. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो अगर मैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी बोल दूंगा, तो जैसे ही उधर वो टच करेगा तो उसका स्पीड कम होता जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली रिटार्डेशन. दिस इज एंगुलर रिटार्डेशन, isn't it? ये एंगुलर रिटार्डेशन है फ्रिक्शन की वजह से जो आएगा, तो इसलिए मुझे इसको माइनस लिखना पड़ेगा. सिमिलरली इसका इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 0 है, और बाद में जब वो 0, उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट ऑल दिस थिंग्स. दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस अल्फा. अल्फा इज दिस माइनस म्यू के जी अपॉन आर इनटू टी. सो व्हाट आई गेट देयर इज देयरफॉर म्यू के जी अपॉन आर into t is equal to omega 0, and therefore ओमेगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, ओमेगा 0 इंटू आर डिवाइडेड बाय म्यू के जी. ओमेगा 0 आर इंटू म्यू के जी.
v upon r without slipping, for rolling without slipping. Next second ना यहाँ पे so this will not be zero. ये zero नहीं, it will start with rolling with certain velocity. तो मुझे इसको ओमेगा बोलना पड़ेगा. I'll have to call this omega. So omega is equal to omega minus हो जाएगा यहाँ पर. This is omega actually. ठीक है. और ये टाइम यहाँ पे नहीं, मैं अब जैसे ही वो वहां पे टच हो गया, द मोमेंट इट स्टार्ट, तो जब तक वो कुछ कुछ देर के लिए वो फ्रिक्शनल मोशन होगा उसके अंदर, घिसता रहेगा, उसके बाद चलना शुरू करेगा. ठीक है. अब उस चलना शुरू करने से पहले देयर वाज द फ्रिक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेटिक फ्रिक्शन था, वो घिस रहा था. लेकिन उसके बाद वो शुरू करेगा मूव करना, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. फॉर रोलिंग without sleeping, for rolling without sleeping, the formula says v should be equal to r into omega. So v तो I have already calculated, mu kgt, mu kgt, r I know, and omega I have here calculated. This is omega 0 minus mu kgt upon r. Now this is what I get there. Open the brackets here. इन ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? दिस विल बिकम I want t here ना, mg upon r. कैसे मिल सकता है मुझे? mu k so if I simplify this will give me omega 0 r minus ये r कैंसिल हो जाएगा इधर, so this will become mu k g t. तेरी गड़बड़ हो रहा है, माइनस mu k g t, and this is also mu k g t. ये माइनस mu k g t इधर आके प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. so this will become 2 mu k g t is equal to omega 0 into r, and therefore t is equal to omega 0 into r divided by 2 mu k into g. Well, I think this is option D. I'm sure मुझे ये दोबारा explain करना पड़ेगा. Please check here. D is the answer. बराबर है ना? I have to explain this once again, and this is surely a star problem. Shall I explain this once again? Let me give the explanation once again. This question has got 3 parts. In the first part, देखिए ये पहले उसका मोशन हम डिस्क्राइब करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये घूमता हुआ एक रिंग है, जैसे कि टायर का, साइकिल का निकाला हुआ टायर है. तो उसको ऐसे पकड़ा और उसको ऐसे गोल स्पीड से उसको घुमाया, एंड देन उसको वहां पर हमने जमीन पर रख दिया, उसको ग्राउंड पर उसको रख दिया हमने. सो जैसे द मोमेंट इट विल टच द ग्राउंड, इट विल अंडरगो लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन देयर, वहां पर कुछ फ्रिक्शन होगा और उसके बाद वो चलना शुरू करेगा. तो टाइम ड्यूरेशन फॉर विच आफ्टर विच इट विल स्टार्ट रोलिंग, वो अपने को पूछा गया है. तो पहले तो वो घिसता रहेगा वहां पे. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द मोशन. अब हम बात करेंगे उसके वेरियस, इस मोशन के अंदर क्या क्या है. तो इस मोशन के अंदर जैसे ही वो यहाँ पे टच करेगा तो वहां पर देयर विल बी द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन की बदौलत, ये फ्रिक्शन ही उसको आगे खींच रहा है बेसिकली. तो नाउ ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेकिन दिस फोर्स, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग फॉर 2 पर्पसेस. एक, फर्स्ट थिंग कि ये वाला जो फोर्स है जिसकी वजह से, नाउ दिस फोर्स आई कैन शिफ्ट हियर आल्सो, वो उस सेंटर ऑफ मास को इस तरफ खींचने के लिए यही फोर्स काम कर रहा है. तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास इज गेटिंग अहेड, उसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. सो दिस इज द वेरी फोर्स व्हिच कॉजेज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हिच इज फॉर द लीनियर मोशन. ये लीनियर मोशन का पार्ट है. तो दैट इज F इज इक्वल टू ma. नाउ दिस फोर्स, ये जो फोर्स है वो कितना कैसे होगा, देखिए mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एम जी. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, दैट विल गिव मी म्यू के जी. तो ये रहा एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच. तो अब ये एक्सेलरेशन मैं यहाँ पर यूज करूंगा. कहाँ पर यूज करेंगे? लेट मी से दिस एक्सेलरेशन विल से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी.
तो उसका फाइनल वेलोसिटी जब वो अचीव करेगा वो v होगा, लेकिन इनिशियली लीनियर मोशन के लिए उसका वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन है म्यू के टाइम्स जी इंटू टी। तो भाई ये मुझे v इज इक्वल टू म्यू के जी इंटू टी, ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे, समझे, ये रहा वो। अब इसका दूसरा पार्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, कि ये घूम भी रहा है। अब ये जैसे घूम रहा है और इसको ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, सो इस फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर टॉर्क होगा, एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज r, but at the same time this torque is equal to I into alpha. Now what is the frictional force that is acting there? It is mu k mg into r is equal to I, this is the ring जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है into अल्फा। तो ये r एक गया और एक m भी गया, तो यहाँ पर अल्फा मिल गया मुझे म्यू के जी अपॉन आर। याद रखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो उसका स्पीड कम होते जा रहा है, मतलब इट इज रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन, इसलिए मैंने इसको माइनस लगा दिया यहाँ पे। अगला पार्ट इसी एनालिसिस का रहेगा भी रोटेशन। तो अब ये जब उसका रोटेशनल मोशन शुरू करेगा तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा 2 मतलब जो एक पर्टिकुलर स्पीड अचीव कर लेगा, एंगुलर स्पीड, तभी वो वहां से रोल होना चालू करेगा, जीरो नहीं होगा वो। सो दैट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, और इनिशियली वो घूम रहा है ओमेगा 0 से, एंड देयर इज रिटार्डेशन, तो इसको मुझे माइनस लिखना पड़ेगा म्यू के जी अपॉन आर इंटू टाइम टी। तो ये रहा मेरा ओमेगा। तो जैसे ही उसको टिक जाता है, ये जैसे ही टच हो जाता है, तो इसका इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा है जो कि ओमेगा 0 है। अब वो घिसने की वजह से थोड़ा सा एंगुलर स्पीड कम, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, जो ओमेगा हो जाएगा। ये रहा रोटेशनल मोशन का हिस्सा। और लीनियर मोशन की या ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करें, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, जो फाइनली वो इतना हो जाएगा, तब ये रोल करना शुरू करेगा, तब तक ये घिसता रहेगा यहाँ पे। सो फॉर प्योर रोलिंग मोशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जो हमने देखा है सर्कुलर मोशन में। रोटेशनल मोशन के लिए ये, प्योर रोलिंग मोशन के लिए क्या जरूरी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये v और ये ओमेगा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज म्यू के जी टी, ये रहा r, एंड ओमेगा इज दिस, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, इफ आई सिंप्लीफाई दिस आई विल गेट देयर आई विल गेट देयर, ये r ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा r, और ये r और r कैंसिल हो जाएगा ओपनिंग के बाद, तो म्यू के जी टी माइनस म्यू के जी टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू ओमेगा 0 r अपॉन 2 म्यू के जी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इज दिस ओके? हेलो, आई वुड लाइक टू गिव यू द होमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन। वो भी स्टार क्वेश्चन ही रहेगा जी, देखिए वो भी स्टार क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या होमवर्क क्या होगा अभी, होमवर्क रिप्लेस द रिंग in above question, that is question number 93, by a disk and find out t, by a solid sphere and find out t। ये आपके होमवर्क है, अब मुझे इसके आंसर्स बताइए, ठीक है। डिस्क और सॉलिड स्फीयर से आप इसको रिप्लेस करिएगा, तो ये आंसर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, इसमें अप्रोच कहाँ चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ ये जो आई लिया है ना मैंने, ये आई चेंज होगा, जिसकी वजह से अल्फा चेंज होगा, जिसकी वजह से ये चेंज होगा, ओके, जिसकी वजह से टी भी चेंज हो जाएगा। सो दिस टाइम ड्यूरेशन फॉर रोलिंग रिंग के लिए और सॉरी डिस्क के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए आपको काउंट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये वेरिएशन हो सकता है। इज दिस क्लियर? हाँ बोलने का है इससे पूछने के बाद। इज दिस ओके? हेलो, Yes, sir. ब्रेक। यस सर। ये आप लोग कीजिएगा, आपका ऊपर का जो प्रॉब्लम है उसका अपने आप रिवीजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ जा रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 94, चलिए ये भी एक स्टार प्रॉब्लम है।
ये भी एक स्टार प्रॉब्लम है जी। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर when a solid sphere rolls without slipping down an inclined plane, making an angle theta with the horizontal, the acceleration of its center of mass is a if the same sphere slides without friction. Oh, slides without friction, then its acceleration a dash will be. वाह, क्या बात, क्या बात है। दो केसेस यहाँ पे दिए हैं जी, दो केसेस दिए हैं यहाँ पे। पहला केस है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं। तो पहले तो उन्होंने दिया है कि भाई ऐसा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, डाल देते हैं। चलिए, और इसके ऊपर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर इज है। तो पहले केस में दिस इज स्लाइडिंग विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है वहां पे, तो फ्रिक्शन की वजह से वो वहां पर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा। तो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ए? तो ये एक्सेलरेशन ए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है भाई, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल दिस, इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। व्हाट इज दिस? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, that is equal to mk square, m gets cancelled, and therefore k square upon r square is 2/5. So 2/5 plus 1, 7/5, 5/7. So this is 5/7 g sin theta, 5/7 g sin theta. Is this clear? This is acceleration, normal acceleration अपना ये है। अब हमें उसका दूसरा जो हिस्सा है, the second part of this question, अगर वो स्लाइड करता है, दे से इफ द सेम स्फीयर स्लाइड्स, if the same sphere slides without friction, isn't it? Slides, यहाँ पे rolls था, this was rolling, and this rolling was caused because of the friction. लेकिन अब ये करेगा sliding, slides without friction, without friction, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब देखिए वो जब स्लाइड करेगा तो ये गोल गोल घूमने वाला वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं उसका इफ इट इज स्लाइडिंग, तो उसका एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर है जी। और उस जी का एक कंपोनेंट होगा इन दिस डायरेक्शन विच इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस, ये जो प्लेन होगा उसको पैरेलल होगा, और दूसरा कंपोनेंट इस प्रकार होगा, लेकिन उसको स्लाइडिंग के लिए काम में जो आएगा वो यही कंपोनेंट होगा। सो दिस विल बिकम जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, एंड बेसिकली यही वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है विच कॉजेस इट टू स्लाइड। इसी एक्सेलरेशन की वजह से वो स्लाइड होगा विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ही नहीं। सो लेट मी कॉल दिस एज ए डैश, ये जो एक्सेलरेशन है उसको हम ए डैश इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और ये एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा। उन्होंने अपने को पूछा है ए डैश विल बी व्हाट, सो ए डैश अपॉन ए अगर हम लोग कर लेते हैं तो ए डैश इज जी साइन थीटा and a is 5/7 g sin theta, and that is equal to 7/5. So a dash is equal to 7/5 times a dash is equal to 7/5 times a, c is the answer.
ये भी एक स्टार ही प्रॉब्लम है, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम। ये नॉर्मल है और ये स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, देखिए वो स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन मतलब इट इज एज गुड एज फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वो ऐसे गिरता जाएगा, लेकिन उसको गिरने के लिए सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना उसको अलाउड होगा बिकॉज ऑफ दिस ये जो what से एक सेकंड, यहाँ पर वो सिर्फ उसको इस तरह ऐसे स्लाइड होना अलाउड है, दिस इज ओनली अलाउड टू स्लाइड डाउन लाइक दिस पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो इसलिए a dash is equal to g sin theta and this is the final answer. Is this clear to you all? I just want to know, please tell me, is this okay? हेलो 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 हेलो, समझ में आ गया क्या ये? यस सर। ये भी एक स्टार ही प्रॉब्लम था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, 95 नहीं, हाँ 95 ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अगेन दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m and radius r is placed on the rough horizontal surface. The sphere is struck horizontally at a height h from the floor. उसको ऐसे स्ट्रक किया, फोर्स अप्लाई किया। तो वेरियस केसेस वहां पर अपने को डिस्कस करने हैं। वी आर सपोज टू डिस्कस वेरियस केसेस हो गए कि सो लेट्स वर्क इट आउट नाउ। यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई किया हुआ है ये, let's say this is the force, ये है वो फोर्स, लेट मी से दैट फोर्स इज F, ठीक है। और लेट्स से दैट दिस इज द रेडियस सेंटर। तो अगर ये सेंटर रहा तो डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो ये रहा रेडियस r, और इसका अगर हम this distance if I consider, so this distance is r, sorry h minus r, h minus r. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. r h minus r, isn't it? ठीक है। Now the sphere will roll without slipping. ये जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो स्लिप नहीं होना चाहिए।
पूरी तरह से परफेक्टली रोल करता हुआ जाएगा, सो दैट शुड बी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये कंडीशन है उसके लिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो दैट विल गिव मी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, isn't it? Now what is the angular momentum of the sphere about its center of mass? ये रहा उसका center of mass. So let me say angular momentum of sphere, अगर वो यहीं से घूमता रहेगा तो it will roll like this ना, of the sphere about center of mass. Center of mass मतलब इसका center है. Angular momentum L is equal to I into omega. Now ये sphere है, so sphere है तो sphere का moment of inertia क्या होता है जी? Solid sphere है, 2/5 mr square. ओमेगा जो हमने अभी अभी देखा है इज इक्वल टू v अपॉन r, isn't it? इसमें से एक r कैंसिल हो जाएगा, सो वो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम this will become 2/5 mrv, 2/5 mrv. अब एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन करने का ये एक तरीका है, isn't it? there is one more way. उसका और एक तरीका है, it will be force is equal to ma ना. ये है उसका रोटेशनल मोशन के हिसाब से अगर हमने कैलकुलेट किया, लेकिन देयर इज वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट दिस पर्सपेक्टिव. देयर इज वन मोर पर्सपेक्टिव कि एंगुलर मोमेंटम अगर होगा दैट इज नथिंग बट एम वी आर, ये भी एक है उसका रोटेशनल, तो ये ऐसे इसको पुश करेगा. दिस इज द फोर्स विच इज पुशिंग देयर. इस फोर्स की वजह से देयर इज द चेंज इन द मोमेंटम. इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 है, isn't it? तो बाद में उसका वेलोसिटी v हो जाएगा, दिस विल एक्वायर सम वेलोसिटी v. सो यहाँ का मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी. सो दिस इज द मोमेंटम m इंटू वी विच इज एक्टिंग इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज h माइनस आर. तो एम वी आर के हिसाब से अगर हम उसी एंगुलर मोमेंटम को देखें तो वो हो जाएगा m इंटू वी इंटू h माइनस आर. The same angular momentum which is seen by the different perspective, m into v into h minus r. क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर एक समझो कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक एक्सिस है और यहाँ पे कोई बॉडी या कोई पार्टिकल जा रहा है, तो पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस विद सर्टेन वेलोसिटी. कितना वेलोसिटी उसका? v. उसका मास है m, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी, और ये जो डिस्टेंस है उसको r, तो m v r उसका मोमेंटम हो जाता है. m v r, ये हमने कल के लेक्चर में mvr देखा था. सो द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई ओमेगा, एंड फॉर द लीनियर मोशन या ऐसे स्ट्रेट अवे मोशन जा रहा है तो उसको mvr भी बोल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी गेट देयर बेसिकली, m v इनटू दिस. तो इसमें से मेरे ख्याल से आई कैन सिंप्लीफाई दिस नाउ, और इसमें से m और v कैंसिल हो जाएगा, m एंड v गेट्स कैंसिल. सो दिस विल गिव मी h माइनस r उधर जाके प्लस r, सो इट इज 2/5 r प्लस r, that is equal to 5 plus 2 7 upon 5 r. h is equal to 7 upon 5 r. ठीक है, तो the sphere will roll without slipping when, ये जो sphere है वो rolling without slipping करेगा when h is equal to 7 upon 5 r, isn't it? तो एक्चुअली हमारा सॉल्यूशन जो है वो एंड होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन एंड्स हियर. नाउ लेट मी चेक विद द ऑप्शंस हियर. ऑप्शंस अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट आर द ऑप्शन हियर, कि मतलब पहला वाला पार्ट जो है, फॉर h इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 r, इसके लिए क्या हो रहा है? दिस इज द स्फीयर स्पिन्स क्लॉकवाइज, लूजेस एनर्जी बाय फ्रिक्शन, द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग. सो ये p इज द आंसर. यहाँ पर अगर मुझे इसको आंसर करना है तो फॉर h इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 r, दिस इज गोइंग वेयर, ये यहाँ पे जा रहा है. सो डी p, तो dp वाला एक ही ऑप्शन है देखिए, therefore a is the answer. d is connected to p, there is only one option, so a is the answer. अब बाकी के चेक कर लीजिएगा. a r,
ए आर मतलब स्फीयर स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज लूजेस एनर्जी बाय फ्रिक्शन। हाँ, अब ये बाकी के ऑप्शन है देखिए कि सेकेंड वाला ऑप्शन अगर मैं देखूं, टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये फोर्स वेट, हाँ इसी डायग्राम को अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे ओनली द डिफरेंस मेड हियर इज ये वाला फोर्स, ये फोर्स यहाँ से हटा के अगर मैं इधर लगा दूं तो क्या होगा, ये फोर्स अगर मैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मतलब इफ एच इज इक्वल टू, दिस इज फॉर एच इज इक्वल टू आर, सो एच इज इक्वल टू आर में क्या होगा, यहाँ पे ये घिसता हुआ चला जाएगा, यहाँ पे दिस विल गो, ओके, सो यह घिसता हुआ जाएगा, दैट मीन्स इट विल हैव ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन एंड इट विल लूज द एनर्जी, क्योंकि घिसता हुआ जाएगा तो फ्रिक्शन से वो अपना एनर्जी लूज करेगा। सो दिस इज कनेक्टेड टू एस हियर, बस इज कनेक्टेड टू एस हियर, ये मुझे बाद में मतलब after I discuss this, तो ये मुझे ये B is connected to S, sphere has only a translational motion and loses the energy by friction, तो वही अपने को यहाँ पे B is connected to S दिख रहा है अपने को, यहाँ पे B is connected to S, are you understanding that, is this okay, you see B is connected to S, sphere has only the translational motion, loses energy, तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, B is connected to S, ठीक है। अगर वो R/2 होगा, तीसरा वाला केस अगर हम कंसिडर करें, if I consider it here, अगर वो R/2 पर होता है, मतलब इसके बीचों बीच में, दिस इज लिटिल बिलो, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू R/2, थर्ड पार्ट h इज इक्वल टू R/2, ये R/2 मतलब इधर जाएगा रे, नीचे जाएगा और भी नीचे जाएगा, h इज इक्वल टू R/2 मतलब इधर आएगा, इधर आएगा h इज इक्वल टू R/2, ठीक है, इधर आएगा। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन देयर, इस वजह से यहाँ पर वो ऐसा नहीं घूमेगा, जैसे ही आप ऐसे इसको यहाँ पर ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये जो स्फीयर है दिस विल ट्राई टू गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा घूमने की कोशिश करेगा वो, समझे क्या, R/2 के लिए इट विल द स्फीयर टर्न्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पर वो घिसता भी जाएगा यहाँ पे, isn't it, so this is h is equal to R/2, it spins in the anti clockwise direction, so AR is this option is AR, this is going for R, देखिए यहाँ पे मैंने आपको AR एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गई बात, is this okay, here I explain you this AR portion, h is equal to R/2, sphere spins anti-clockwise and loses energy by friction, and naturally फिर वो 3/2 R के लिए क्या होगा, it spins clockwise loses energy by friction, अगेन अगर आपको चाहिए तो आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हो, वन मोर ऑप्शन हियर, लाइक इट इज 3/2 मतलब R एंड हाफ R, तो यहाँ पर ये जो आएगा इधर आएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इसके नीचे जाएगा, तो ये दोबारा this will be the option. I hope this is clear. Shall I proceed for the next question? Hello, hello, hello. अरे समझ में आ गया कि आपको पहले ही ऑप्शन में सारे आंसर्स मिल जाएंगे, मतलब आंसर्स मिल जाता है आपको, इज दिस ओके, शैल आई प्रोसीड फर्दर, हेलो, आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ या, अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको स्किप किए थे, उन क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ,
So 68, 92 and हॉट्स में का 5. एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अभी जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 68, 92 एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में से 5. ये तीनों क्वेश्चंस रिलेटेड है और तीनों स्टार है, तीनों भी स्टार है. ठीक है, 68 से शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. ये रहा. यस, क्या दिया है यहाँ पे? A uniform disk of mass m, radius r. A uniform disk एक डिस्क है ये of mass m and radius r is resting on the table on its rim. The coefficient of friction between the disk and the table is mu. Now the disk is pulled with the force F as shown in the figure. What is the maximum value of F for which the disk rolls without slipping? क्या बात है, ये rolls without slipping वाले जो प्रॉब्लम्स है बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है. चलिए कैसे करेंगे बताइए. मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है जी. How to draw the free body diagram of this? So if I draw the free body diagram, ये कुछ इस प्रकार बनेगा. इसको इस तरफ खींचा जा रहा है, इट्स अ डिस्क ना, तो नेचुरली देयर विल बी द फ्रिक्शन. इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन होगा जरूर, और वो यहाँ पर ऐड करेगा जी ऐसे. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F. करेक्ट ना? सो लेकिन इसके बावजूद इस फोर्स की ज्यादा रहने की वजह से द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? F minus F. F minus F, that is the resultant force. F is equal to ma. बराबर है क्या? Resultant force F minus F is equal to ma, isn't it? I'll call this as equation number 1. ये था first part of the question solution. ये solution का पहला part था. अब हम दूसरे part की तरफ जाते हैं, the second part, कि for rolling without slipping, if there is no slipping, for no slipping, कोई स्लिपिंग वहां पे कब नहीं होगा, तो इन दैट केस वी कैन से अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो देयर इज सम फोर्स. फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन है तो दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा. ऐसा हो जाएगा. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब वही एक्सेलरेशन होगा उसका a. सो a इज इक्वल टू r अल्फा. देखिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए v इज इक्वल टू r ओमेगा भी होता है या a इज इक्वल टू r अल्फा होता है. ये सारे फॉर्मूले रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए है. सो अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r, ये हो जाएगा. ये सेकंड वाला फॉर्म, सेकंड चीज. तीसरी चीज, तो इसकी वजह से अब टॉर्क जो होगा, क्योंकि हम इसको अगर ऐसा धक्का मारते हैं तो इस फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता एकदम स्मूथ होता तो ये स्लाइड करता हुआ चला जाता है, लेकिन फ्रिक्शन है इसकी की वजह से वो रोल करता हुआ जाएगा. तो बेसिकली दिस फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द टॉर्क हियर. सो व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, isn't it? The torque is provided by the friction, and this torque is equal to the frictional force F into the distance. But torque is also equal to I alpha. Torque is also equal to I alpha. Now ये force of friction कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन I तो मुझे पता है. So this will be F into R is equal to I. This is a disk. Disk का moment of inertia, because it is rolling about this central axis. So disk का moment of inertia होगा mr square upon 2 into alpha. Alpha I already calculated, I suppose.
अल्फा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, सो इट बी ए अपॉन आर। इस तरह से ये r गेट्स कैंसल्ड, एक यहाँ पे जाएगा और दूसरा यहाँ पे चला जाएगा। सो आई गॉट देयर द f का वैल्यू मुझे मिल गया जी, कितना आ गया। सो व्हाट इज दिस ma और 2f इज इक्वल टू ma, आई कॉल दिस एज इक्वेशन। अब देखिए गौर से देखिए ये दोनों इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I'll say here f minus small f, ये frictional force है, is equal to ma which is 2f. That means मुझे क्या मिलेगा, applied force is equal to 3 times the frictional force. अब ये frictional force होता है, उसका limiting value होता है, we have taken here the limiting value of frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स अगर अप्लाइड फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, मतलब वो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एक पर्टिकुलर हद तक जाता है, लिमिटिंग वैल्यू तक जाता है, उसके बाद वो हैंड्स अप कर देता है। तो इसका मतलब है ये जो लिमिटिंग फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है एंड दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन 3। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू एफ अपॉन 3, लेस देन और इक्वल टू एफ अपॉन 3। इज दिस क्लियर टू ऑल? बराबर है क्या? isn't it? Now what is that maximum frictional force? ये जो frictional force कितना होता है? So this frictional force अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो this frictional force F is equal to mu times the normal reaction. तो ये इसका weight होगा mg and normal reaction होगा वही, so mu times mg this है. So if I substitute this frictional force here, so this will become mu times mg is less than or equal to F by 3 and what is that maximum force F is minimum, ये जो force होगा कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, that force is greater than or equal to 3 times mu mg, 3 times mu mg। तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, वही पूछा है उन्होंने कि what is the maximum value of F for which the disc rolls without slipping। उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो घिसना शुरू करेगा। So this is the maximum value F max, and take what value? It will become 3 times mu mg and that's the answer. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आ गया? 3 times mu mg, ये स्टार प्रॉब्लम है, undoubtedly this is star problem. 3 times mu mg, C is the answer there. Is this clear to you all? Hello? Did you understand this? मैं इसको इस तरफ से लिखूंगा, एक सेकेंड। ये यहाँ से मैं बोलूँगा कि भाई therefore F max is equal to 3 times F max, that is equal to 3 times mu mg। ये आंसर होगा C। इज दिस ओके? समझ में आ गया आपको? हेलो? अब इसी से रिलेटेड इसी टाइप का है अगला क्वेश्चन जो इसी से कनेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 92। सो लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 92 नाउ। क्वेश्चन नंबर 92 इसी से रिलेटेड है, ये रहा। क्या दिया है? A solid cylinder is rolling without slipping on a plane. Question number 92. A solid cylinder is rolling without slipping. चलिए आंसर करते हैं यहाँ पे।
तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है विच इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जैसे। ये सॉलिड सिलेंडर है, इट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, rolling without slipping on a plane having inclination theta, coefficient of kinetic friction, coefficient of static friction is mu s, relation between theta and mu s is। तो भाई ये रोल कर रहा है, it is rolling down, let's say like this। अब इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या होंगे जी, तो ये तो होगा एक mg होगा ऐसे, राइट। इस mg का एक कंपोनेंट होगा कुछ इस प्रकार, have its component like this। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड दिस विल बिकम mg cos थीटा। दूसरा एक कंपोनेंट होगा जो कि इस तरफ हो जाएगा ऐसे, विच इज mg sin थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। और वहां पर फ्रिक्शन भी होगा बिकॉज दिस इज गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है तो उसको फ्रिक्शन अपोज करेगा जी। द मोशन इज लाइक दिस ना, द मोशन इज लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसको अपोज करने का काम करेगा जी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, दैट फ्रिक्शन इज अपोजिंग, जो कि इधर ऐड करेगा इस प्रकार, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे mu s is the coefficient of static friction। static friction मतलब दोनों के अंदर स्लिपिंग नहीं होगा, इसलिए static friction। so that static friction is equal to mu s into the normal reaction। लेकिन यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो होगा mg cos theta। so this will become mu s into mg cos theta। ठीक है, mu s mg cos theta। ऑलराइट, अब मुझे बताइए कि ऊपर खींचने वाला ये एक फोर्स और नीचे खींचने वाला ये एक फोर्स, दोनों में कौन जीत रहा है, तो mg sin थीटा। सो आई विल से mg sin थीटा माइनस mu s mg cos थीटा, दिस इज f इज इक्वल टू m में, इसमें से m गेट्स कैंसिल, m गेट्स कैंसिल, isn't it? well बेसिकली ये था हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस वाज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f। वेल मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। आई कॉल दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वहाँ पे रोल हो रहा है वो, इसको हम नो स्लिपिंग कंडीशन भी कहते हैं, नो स्लिपिंग कंडीशन। तो इन दैट केस हम ऐसा बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा भी होता है, isn't it? So in this case alpha is equal to a upon r, ये है acceleration with which it's going down। ठीक है, and there is torque also involved in this case, also there is torque, tau is equal to, अब ये टॉर्क यहाँ पर ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से ऐसे रोल होता जा रहा है, so it will be nothing but force into r, but that is also equal to I alpha। So let me find out what is this force of friction। so I'll say this is F into R। और ये कौन सा बॉडी है जी, दिस इज एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए I कितना होता है, डिस्क के बराबर mr स्क्वायर अपॉन 2, अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r। इसमें से एक r इधर गया और एक r इधर चला गया, सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, so the force of, so the force of friction F is equal to ma upon 2, rather ma is equal to 2 times F, ma is equal to 2 times F। अब let me call this as equation 2। so from 1 and 2 क्या मिलेगा जी, from 1 and 2 what do we get there, ma के जगह पर 2f लिख दीजिएगा, मुझे एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, isn't it? ma के जगह पर 2f लिख दीजिएगा, so this will become what, 2f
प्लस एफ, ये माइनस एफ उस तरफ चला जाएगा, प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. सो दिस विल बिकम 3f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो हमने पहले से लिखा है वहां पे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज एक्चुअली म्यू एस एम जी कॉस थीटा, 3 टाइम्स म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. तो चलिए इसमें से एम जी गेट्स कैंसिल एंड व्हाट इज the thing that we get there is tan theta is equal to tan theta, it is 3f is equal to this tan theta, or I will say simply f is equal to tan theta is equal to क्या बनेगा 3 times mu s, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर हमको इधर मिल जाएगा टू एक्सप्लेन यू. एक मिनट ना, मैं इसको आपको अपने हिसाब से बता दूं. तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, आई विल से f is equal to mg sin theta upon 3. अब ये जो है F, दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब ये ज्यादा से ज्यादा इतना फोर्स हो सकता है या इससे कम हो सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ ये इसका जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, ये जो F है, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा. ये उसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इतना है. और F के लिए अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम mg sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इतना ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन वो डेवलप कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं. सो इट विल बी mg sin थीटा अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा. इसमें से mg गेट्स कैंसिल एंड देयरफॉर आई विल गेट tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस. tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस. अब देखिए ये यहाँ पे उन्होंने दिया है ऑप्शन, कौन सा है जी, tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस. सो बी इज द आंसर देयर. इसका आंसर है बी. इज दिस ओके? 92, बी इज द आंसर देयर. प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू ऑल. 92 बी इज द आंसर. और इसी तरह का है अगला हॉट्स में से क्वेश्चन है. हॉट्स में से क्वेश्चन नंबर 5, सेम टाइप का है. हॉट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसी को भी इसी से रिलेटेड है वो. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ये रहा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पूरा कवर हो जाता है. देखिए दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स 5. क्या दिया है क्वेश्चन, देखते हैं. देखिए लेट मी एक्सप्लेन दिस. इसका मैं फिनिश करके फिर हम स्टॉप करेंगे यार. A tangential force F acts on the top of a disk of mass m radius r. It rolls without slipping. Then, okay, ये एक डिस्क है, इस डिस्क के टॉप पर कोई फोर्स एक्ट हो रही है. इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग. यहाँ पर उसके टॉप पर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है. So let me say this is a force F, tangential force, ठीक है. इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग. अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा घूमेगा, राइट. तो ये इस तरफ इसका मोशन हो रही है, बराबर है क्या. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. So what will be its equation regarding translational motion?
rolls without sleeping. Yes.